डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। Hello everyone, hope you all are fine. Be positive, stay positive and always ready to learn something new each and every day of our life, right? So let's start a new topic. I am Neelam Pandya, Assistant Professor, Vocational Professional Department, Dr. Baba Saheb Ambedkar, Open University welcomes you in a Chaitanya Studio online lecture series of BBA course, paper code number 102. Block 4, Unit 3, Accounting for the Hire Purchase. So let's start with the learning objective of this unit. Learning objective of this unit, accounting for the hire purchase. So there is two methods available, accounting for the hire purchase and installment system. So let's have a look. After learning this unit, you will able to understand concept and terminology of hire purchase, difference between hire purchase agreement and installment system, calculation of interest rate with the different information sources, journal entries in the books of hirer and vendor, ledger making in the books of hirer and vendor. So there is a two parties, one is a hirer which is buyer and vendor which is seller. So let's have a look in detail. When the goods are sold, the purchaser may either make the full payment at a one time and may defer at the payment. When the payment is delayed, the amount may be paid in a monthly, quarterly, yearly and installment. When the price of an article paid by the installment, the total amount is paid higher than the actual cash price and the article. So ultimate यहाँ पे क्या कहा गया है कि वन टाइम पेमेंट करो, कोई भी पर्टिकुलर कोई भी चीज़ आप परचेज कर रहे हो तो वन टाइम पेमेंट करो, अदरवाइज वो मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना पड़ेगा. तो वो डिटेल में हम आगे देख रहे हैं. The excess price is the charge of interest and the risk involved. This arrangement of making the payment in installment is beneficial for the both seller and buyer. The seller is able to sell more goods and the buyer can buy the expensive item with the limited sources. There are two systems deferred of the payments, namely the hire purchase system and installment system. In this unit, we will learn detail about the hire purchase system. तो जो अब वो पैराग्राफ है वो कह रहा है कि जो इंस्टॉलमेंट जो सिस्टम है, जो हायर परचेस सिस्टम है, वो दोनों पार्टीज के लिए बेनिफिशियल है. तो जो हायरर है, जो बायर है, उसके लिए बेनिफिट ये रहेगा कि उसके पास लिमिटेड सोर्सेज है इनकम के या फिर कोई पैसे की कमी है और उसे एट अ टाइम उसी मंथ में कोई चीज़ परचेस करनी है तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम से वो इजीली उसे परचेज कर पाएगा. और सेलर के लिए जो पॉजिटिव थिंग है वो है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पाएगा. तो दिस इज बेनिफिशियल फॉर द बोथ सेलर एंड बायर. सेलर सेल द मोर गुड्स एंड द बायर बाय एक्सपेंसिव आइटम विद द लिमिटेड सोर्सेज. एंड इसके लिए टू टाइप्स की मेथड अवेलेबल है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मेथड्स अवेलेबल. फर्स्ट इज अ हायर परचेज सिस्टम एंड सेकंड विच इज अ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. हायर परचेज सिस्टम. तो हायर परचेज सिस्टम क्या है उसका डिटेल में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि हायर परचेज सिस्टम इज एन एग्रीमेंट वन अंडर विच द बायर टेक्स द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड promising to pay the price in a certain number of installment until the full payment is made to treat the payment as a higher charges for using the said goods. वो कमिटमेंट करता है एट द टाइम ऑफ बाइंग कि मैं इतने इंस्टॉलमेंट में जो है पूरा पेमेंट करूंगा. तो फर्स्ट वो डाउन पेमेंट जो एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन जो डाउन पेमेंट रहेगा वो पे करना होगा. चीज़ जो पर्टिकुलर उसको परचेज करना है वो उसे मिल जाएगा और जो पूरा एग्रीमेंट साइन होगा कि इतने इंस्टॉलमेंट में आपको जो पेमेंट है वो आपको फिनिश करना है. तो ये यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि टू ट्रीट द पेमेंट एज अ हायर चार्जेस थ्रू यूजिंग द सेड good and he or she is a promising to pay the price in a certain number of installment
तो वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं इतने इंस्टॉलमेंट में मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या फिर 2 साल के लिए या 5 साल के लिए मैं इंस्टॉलमेंट पे करके पूरी जो पेमेंट है वो खत्म करूंगी. Detailed description is continued. In fact, hire purchase system stimulate that the delivery of goods will be given by the owner of a goods the hire purchaser. Payment will make in a installment. Each installment will be treated as a higher charges so that it default in respect of payment to even the last installment is made. The seller will be entitled to take away the goods without compensating the hire purchase in any form. If all the installment are paid to the owner, the condition are fulfilled, the ownership of the good will pass to the buyer. Next, the difference between hire purchase system and installment system. तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल सेट करेंगे और एक एग्जाम्पल को लेके ये पूरा जो डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेस सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम, वो हम इजीली देख पाएंगे. फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो इट इज हायरिंग ऑफ गुड्स टू एग्रीमेंट. इट इज अ एग्रीमेंट ऑफ सेल. दोनों में डिफरेंस क्या है कि इट इज अ हायरिंग गुड्स एग्रीमेंट एंड सेकंड विच इज एग्रीमेंट ऑफ अ सेल. तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज जो हायर परचेस सिस्टम है उसको लेके हमने कोई कार परचेस की, तो एट द टाइम ऑफ जो एग्रीमेंट है हम डाउन पेमेंट पे करेंगे और कंपनी जो है वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करके हमें वो परमिशन देगी वो चीज़ खरीदने के लिए. एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम में हम एग्जांपल ले रहे हैं मोबाइल का. सपोज हमें कोई मोबाइल खरीदना है तो मोबाइल के जो अभी तो ज़ीरो डाउन पेमेंट में भी आप मोबाइल खरीद सकते हो. तो आपको 24 इंस्टॉलमेंट या 36 इंस्टॉलमेंट का एक एग्रीमेंट देंगे कि आप अभी से ये मोबाइल ले लो और 24 इंस्टॉलमेंट में उसकी रकम फिनिश करो. तो आगे हम वन बाय वन डिफरेंस देख रहे हैं, फिर डिटेल में उसमें डिस्कस करेंगे. पॉइंट्स ऑफ अ डिफरेंस. ओनरशिप ऑफ गुड इज अ ट्रांसफर आफ्टर द पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट. जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया कि आप इतने इंस्टॉलमेंट ख़त्म करो उसके बाद कार की ओनरशिप आपको मिलेगी. और इंस्टॉलमेंट सिस्टम में क्या है कि ओनरशिप ऑफ द गुड्स पासिस टू द बायर जस्ट साइनिंग द अग्रीमेंट. आप पहला एग्रीमेंट ही साइन करते हो, पहला इंस्टॉलमेंट पे किया है नहीं किया है फिर भी एग्रीमेंट हो जाता है, तो जो मोबाइल है उसकी अथॉरिटी बायर को मिल जाती है. नेक्स्ट, द बायर कैन नॉट सेल, डिस्ट्रॉय और ट्रांसफर द गुड. जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश नहीं होता तब कार का सेल नहीं हो पाएगा. कोई भी अलग या दूसरे पर्सन को वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा. द बायर कैन सेल एंड डिस्ट्रॉय और मोर्गेज और ट्रांसफ़र एज हीज हर विश. मीन्स अगर वो चाहे तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम में अपनी जो परचेस की हुई जो चीज़ है उसको ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे व्यक्ति को, जबकि हायर परचेस सिस्टम में ट्रांसफ़र का ऑप्शन नहीं है. Risk. All the risk are borne by the vendor before the payment of final installment. तो वेंडर के ऊपर पूरा रिस्क रहता है और यहाँ पे लिखा है कि all the risk are borne by the buyer from the date of agreement. द एग्रीमेंट साइन होने के टाइम पे ही जो बायर है उस पर पूरा रिस्क रहता है. रिस्क ऑफ रिटर्न. The buyer cannot return the goods before making the final installment. एंड सामने लिखा है कि the buyer cannot return the goods to the seller. इंस्टॉलमेंट सिस्टम में रिटर्न करने का कोई ऑप्शन नहीं है. अगर कोई क्षति आई या फिर कुछ भी आया तो रिटर्न, अगर वारंटी पीरियड में लिखा है तो ही ये हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम. जबकि हायर परचेस सिस्टम में क्लियरली लिखा है कि द बायर कैन रिटर्न द गुड्स बिफोर मेकिंग द फाइनल इंस्टॉलमेंट. फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं हुआ तब तक उसके पास चांस है कि अगर उसको कोई भी रीज़न से वो रिटर्न करना है तो कर सकता है. रिपेयर एंड मेंटेनेंस. The liability to repair and maintenance lies with the seller provided that the buyer takes the utmost good care. And repair and maintenance में installment system के लिए लिखा है कि the buyer is responsible for all repair and maintenance. Means मोबाइल में अगर कुछ भी वारंटी पीरियड के बाद
अगर कुछ आया तो रिपेयर मेंटेनेंस की पॉसिबिलिटी जो है वो बायर को दी गई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉरफीचर ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड, in case of default in payment of installment paid, the installment will be forfeited and treated as a higher charges, अलग से चार्ज लगेगा उसमें। और यहाँ पे लिखा है कि the act of a forfeiture can not be activated, मोबाइल परचेज में इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ये अवेलेबल नहीं है फॉरफीचर। नाउ दो मेथड्स है वो हम देखेंगे कि जो हायर परचेज सिस्टम की दो मेथड से हमें पूरा प्रैक्टिकल सेशन करना है। ये हमारा थियोरेटिकल सेशन है, यहाँ पे हम बेसिक जो है डेफिनेशन, मीनिंग, डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम एंड जो मेथड है, मेथड का थियोरेटिकल पार्ट यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हायर परचेज का पूरा प्रैक्टिकल सेशन विथ जर्नल एंट्रीज हम करेंगे। तो ये है मेथड नंबर 1। there is two method available in a hire purchase system. First method is when the rate of interest, total cash price and installments are given. तो यहाँ पे डिटेल में लिखा है कि इन दिस सिचुएशन बिफोर कैलकुलेटिंग द एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इन ईच इंस्टॉलमेंट इट विल हेल्पफुल टू एसरटेन द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड. This will help you subtracting the total cash price from the higher purchase price. Then the following step should be followed for calculating amount of interest on a each installment. तो यहाँ पे हम एक पूरा एग्जाम्पल देखेंगे कि there is one example is given कि A Limited purchase a machine on hire purchase from B Limited on 1st April 2008. Cash price is 66,000. 20,000 is payable at the sign of agreement and the balance in a 3 annual installments 20,000 each means 3 इंस्टॉलमेंट दिए हैं 20,000 के 3 इंस्टॉलमेंट आपको पे करने हैं. The vendor company charge interest at a 15% on the unpaid amount. Let's calculate the interest include in a various installment. तो आपको ये जो एग्जाम्पल दिया है उस पे से आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा, क्योंकि नेचुरली आप इंस्टॉलमेंट से कोई चीज़ खरीद रहे हो तो जो टोटल कैश प्राइस होंगी उसमें इंस्टॉलमेंट ऐड होगा ही होगा. जो भी पर्टिकुलर जो कंपनी की पॉलिसी होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उस पर से ही आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट. और इंटरेस्ट को आप कैश प्राइस में ऐड करोगे तब आपको मिलेगा टोटल अमाउंट कि आपको ये चीज़ कितने में पड़ी. मोबाइल आपने खरीदा तो टोटल 1 लाख जो है कैश, सपोज आपने एप्पल का कोई फ़ोन खरीदा तो 1 लाख का फ़ोन है, प्लस आप इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो तो जो भी कंपनी की पॉलिसी है 15%, 20%, 12% जो भी पॉलिसी है उसको फॉलो करके आपको इंटरेस्ट पे करना रहेगा विथ इंस्टॉलमेंट. तो यहाँ पे दिया है, हमें देखना है कि 66,000. सो यहाँ पे कैश प्राइस दी है 66,000, अमाउंट पेएबल इज 80,000. सो द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट पेएबल माइनस कैश प्राइस, डिफरेंस जो है वो है 14,000 विच इज अवर इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ओवर द 3 years. सो यहाँ पे कैश प्राइस ऑफ मशीन इज 66,000 माइनस डाउन पेमेंट 20,000, अमाउंट आउटस्टैंडिंग इज 46,000 प्लस इंटरेस्ट 46,000 का 15% कितना होगा 6,900. तो 46,000 प्लस 6,900 हम प्लस करेंगे तो आएगा 52,900. नाउ अगेन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमें माइनस करना है 20,000, तो हमें मिलेगा 52,900 माइनस 20,000. सो डिडक्ट करने के बाद आएगा 32,900. फिर अगेन 32,900 जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमें मिली है उसका 15% करना है. तो 32,000 इंटू 15 अपॉन 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 4,935 जो कि हमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग अमाउंट में. तो 32,900 प्लस 4,935 तो हमें मिलेगा 37,835. फिर अगेन हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट माइनस करना है 20,000.
सो 20,000 माइनस करने के बाद आएगा 17,835। फिर अगेन हमें 17,835 जो आया उसका 15% करना है, और अगर नहीं करना है तो 17,835 और जो लास्ट हमारा इंस्टॉलमेंट है 20,000, तो 17,835 में से 20,000 माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन 20,000 एंड 17,835, तो डिफरेंस आएगा 2,165। तो जो डिफरेंस है उसमें से हमें लास्ट ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें 1 बाय 1 कैलकुलेशन करनी है, तो हमें तीनों साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलरेडी गिवन। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, उसमें से कैलकुलेशन करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1 बाय 1 1 ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है। तो ये है इट्स ऑल अबाउट हायर परचेज सिस्टम। जो दूसरी मेथड है उसमें इंटरेस्ट नहीं दिया होगा। तो टाइटल इज व्हेन द टोटल कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट्स आर गिवन बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन। सो उसमें जो भी मिसिंग चीज है वो हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखा है कि व्हेन द टोटल कैश प्राइस, डाउन पेमेंट एंड द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज गिवन, मीन्स सारी चीज दी है, कैश प्राइस भी दिया है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट भी दी है, फिर डाउन पेमेंट भी दिया है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। लास्ट जो हमने मेथड देखी उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलरेडी दिया था 15%, तो वो इजी था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जस्ट हमें जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसमें से कैलकुलेशन करके हमें मिल जाएगा द रेट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। बट यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, तो हमें वो जो पूरा रेशियो होता है 3:1 रेशियो फाइंड करने के बाद हमें इंस्टॉलमेंट की अमाउंट मिलेगी। तो उसमें क्या होगा आगे हम देखते हैं। अगेन वन एग्जाम्पल इज गिवन, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज फ्रॉम वाई लिमिटेड, द कैश प्राइस इज 80,000, 20,000 is payable on the signing agreement and the balance in a 3 annual installment of 24,000 each. Calculate the amount of interest to be paid to X company limited. रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो रेशियो निकालना पड़ेगा तीनों साल का। रेशियो के हिसाब से हमें मिल जाएगा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट तीनों साल का। तो कैश प्राइस इज 80,000 प्लस इंस्टॉलमेंट इज 24, हम करेंगे 24,000 इंटू 3, तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने हुए 72,000। सो डाउन पेमेंट है 20,000 प्लस 72,000, सो टोटल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी प्राइस कितनी आएगी 92,000। अगेन आई रिपीट, कैश प्राइस 80,000 ऑलरेडी दी है, 20,000 जो है डाउन पेमेंट है, 24,000 एक इंस्टॉलमेंट का रेट है, 3 इंस्टॉलमेंट पे करने हैं, तो 24,000 इंटू 3 ईयर्स हम करेंगे तो आएगा 72,000। 72,000 प्लस डाउन पेमेंट 92,000 इज अ टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। So now we have to find the contract price amount outstanding when the each installments becomes due. तो total contract price is 90,000 जो हमने आगे देखा, 92,000 में से डाउन पेमेंट माइनस करेंगे 20,000 तो हमें मिलेगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की आउटस्टैंडिंग प्राइस विच इज 90,000 माइनस 92,000 माइनस 20,000, सो आएगा 72,000। 72,000 में से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 24,000 हम माइनस करेंगे तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमें मिलेगी 48,000। 48,000 में से अगेन सेकंड इंस्टॉलमेंट माइनस करेंगे 24,000 तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग मिलेगी 24,000। और अगेन 24,000 में से 24,000 जो सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट है जो कि हमारा फर्स्ट है उसे माइनस करेंगे 24 तो हमें माइनस मतलब जो अकाउंट है वो नील हो जाएगा। तो हमें ये कैलकुलेशन हमने क्यों की, बिकॉज आउटस्टैंडिंग अमाउंट हमारे पास नहीं थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था। तो जो अब हमें मिला है 72,000
48,000 एंड 24,000 जो कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उस पर से हमें रेशियो फाइंड करना है. द अबोव मेंशन कैलकुलेशन शोज दैट द अमाउंट आउटस्टैंडिंग व्हेन इंस्टॉलमेंट बिकम्स ड्यू 72,000, 48,000 and 24,000 respectively. So we have to find out the proportionate ratio, which is 3 to 1. Interest will be calculated on a total payment. Total payment is 92,000 minus cash price 80,000. So difference आएगा 12,000. तो जो टोटल पेमेंट है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो आगे हमने देखा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 92,000. सो 92,000 में से आप माइनस करोगे कैश प्राइस, तो जो 12,000 का डिफरेंस है, 12,000 विच इज अवर इंटरेस्ट रेट. सो इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड इनटू प्रोपोर्शनेट रेशियो 12,000 into 3/6, 12,000 into 2/6 and 12,000 into 1/6. So after you will get 6,000, 4,000, 2,000 which is our installment price. First installment price is 6,000, second installment price is 4,000 and third installment price is a 2,000. So इस तरह से पूरा proportionate ratio find करके आपको installment की rate of interest की आपको find करना है. Some important terms यहाँ पे दिया है कि what is installment, what is down payment, what is hirer, what is vendor. So let's have a look. Installment. It is a sum of money in the paid of small parts over a fixed period of time. It is usually a part of a payment of a plan of a loan. Installment जैसे हमने डिस्कस किया कि कोई भी आपको परचेज करना है कोई भी चीज़, तो एट द टाइम ऑफ द आपको कोई भी चीज़ बाय करनी है तो आपको सबसे पहले डाउन पेमेंट पे करना होगा, फिर 2 साल के लिए या 3 साल के लिए आपको इंस्टॉलमेंट उसके पे करने पड़ेंगे. तो जो इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, वो हमारा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा. सेकंड विच इज़ अ डाउन पेमेंट. इट इज़ एन इनिशियल पेमेंट पेड आफ्टर समथिंग बॉट ऑन अ क्रेडिट. Third one is a hirer. Hirer is defined as a person who has taken the goods on a hire purchase in the agreement. He is also known as a buyer. Hirer means nothing but it is also called a buyer. Vendor. Vendor is defined as a person who has sold the goods on a hire purchase to hirer. It is also known as a seller. So vendor is nothing but it is a seller. So थैंक यू सो मच. आपको ये जो थियरी सेशन है वो आपको समझ में आया होगा और हमने अच्छे से डिस्कस किया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम एंड द ऑल लर्निंग ऑब्जेक्टिव एंड ऑल थियोरिटिकल पार्ट. इन द नेक्स्ट सेशन वी आर डूइंग टू प्रैक्टिकल सेशन ऑफ हायर परचेज सिस्टम. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. स्वाध्यायः परमं तपः